Okay. So this is the most important thing, Vacutainer guide, which you all know that this is going to be asked by your examiner, right? So this is the most important thing whenever you are giving an exam conducted by AIMS or any other recruitment based examination. So this is the basic thing which you should know, right? So we will know what is the color code in a vacutainer means. What is the meaning of lavender cap, light blue cap, red cap, or gold tiger top? So what does it mean? So I will explain it in a very simple language so that you will memorize it and you can take the screenshot. You will also get the note. So this is like you can remember it for so long. You don't need to write everything in your notebook. I am providing you everything. Okay. So let's start with the very important one, that is the lavender or purple EDTA. I have to change the color. Which color is not here? Black. I will take uh, ये दिखेगा क्या, देखते हैं. ठीक है. Lavender. Lavender cap is for what? Lavender cap is for the most important. Lavender भी आप बोल सकते हो, purple भी आप बोल सकते हो. Is the most commonly used blood collection tube which contains a dipotassium EDTA. ठीक है, K2 EDTA. So it is a anticoagulant. What it will do? It will act as a anticoagulant, and then it will, what it will anticoagulant hai, so it will not let your blood coagulate. So what it will do? It stop blood from clotting by binding the calcium. This EDTA, dipotassium EDTA, will bind to the calcium, and then this calcium will be able to like prevent the clotting, which is the necessary thing. So whenever you want whole blood, you should use this lavender purple vial. ठीक है. So the main common test which we can do if we get our blood sample in this lavender cap is CBC, glycosylated hemoglobin, and ESR, peripheral smear, blood grouping, cross match, right? So this is the most important one. एंड CBC के लिए हमें रेड ब्लड सेल जो हम मेजर करते हैं, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, तो इसके लिए हमें क्लॉटेड ब्लड नहीं चाहिए होता है. ठीक है. सो इसीलिए हम लोग एंटीकोएगुलेंट वायल का यूज करते हैं. सो इन द फर्स्ट रो आई हैव मेंशन दी एडिटिव, राइट. सबसे पहले वाले में एडिटिव मेंशन किए गए हैं, उसके बाद में मैंने कलर वायल मेंशन किया है, एंड देन व्हाट टाइप ऑफ सैंपल यू गेट इन ईच ऑफ द वायल, राइट. So this is the most important one. In your examination, out of all the tubes, any one of may come. So be ready for it to get the question out of this particular slide. ठीक है. I will try my best to provide each and every possible topic that can be asked in your exam. Right. So next जिसका चांस है वो है लाइट ब्लू, या जिसे हम कहते हैं सोडियम सिट्रेट कलेक्शन ट्यूब, राइट. सो व्हाट इट इज इन, लाइक लेट मी चेक, म्यूट तो नहीं है, नहीं. सो 3.2% जो है वो सोडियम सिट्रेट विच एक्ट एज अ एंटीकोएगुलेंट. ठीक है. विच इज अ रिवर्सिबल एंटीकोएगुलेंट बेसिकली बाय बाइंडिंग द कैल्शियम. ठीक है. सो आपको इसका केमिस्ट्री पूछ सकता है, व्हाट इज द एडिटिव इन द लाइट ब्लू ट्यूब. सो इट इज 3.2% सोडियम सिट्रेट. ठीक है. व्हाई इट इज क्रूशियल? इट इज क्रूशियल बिकॉज लाइक जो ये जो ट्यूब होता है, ब्लू कैप वाला ट्यूब, सो द ट्यूब मस्ट बी फिल्ड टू द एग्जैक्ट फिल लाइन इंडिकेटर. इसमें एक इंडिकेटर होता है, यू हैव टू fill the blood up till that, and a precise 9:1 ratio of the blood to anticoagulate is required for accurate test result. यानी जितना इसमें मार्किंग रहता है उतना तक हमें ब्लड चाहिए होता है, एंड हम क्या करते हैं, जेंटली इन्वर्ट करके मिक्स कर देते हैं. ठीक है. 3 to 4 times immediately after the collection of the blood sample from the patient. Now what type of test you can do? So you can do the PT INR test. PT is what? Prothrombin test, prothrombin time, and INR is what? International normalized ratio.
Now you already know what do you mean by PT-INR. I have taught you in my previous lectures about what are the different biochemical tests which are like currently in use in different diagnosis of disease in patients. ठीक है, सो मैं ये कई बारी आपको बता चुकी हूँ, राइट? नाउ PT-INR के अलावा जो टेस्ट के लिए यूज होता है वो है APTT. APTT इज फॉर व्हाट? एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम. यानी बेसिकली जो प्रोथ्रोम्बिन है और एक जो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है APTT वो. इसके अलावा डी डाइमर, फाइब्रिनोजेन और अलग अलग कोएगुलेशन स्टडीज के लिए ये यूज होता है. ठीक है, सो यू हैव टू लाइक रिमेंबर दिस थिंग because this may be asked in your examination, right? So you can imagine कि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं. यू कैन सी देयर आर सो मेनी कलर आर देयर इन कलेक्शन ट्यूब. lavender, light blue, red, gold, green, gray, black, pink. So you have to remember each and everything, right? So नेक्स्ट कलर जो है वो अगेन एक सबसे कॉमन कलर है. ठीक है, सबसे कॉमन कलर क्यों है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, विच इज रेड प्लेन कैप्ड ट्यूब. ठीक है, जिसमें कोई भी एडिटिव, नो एंटीकोएगुलेंट इज देयर, नो एंटीकोएगुलेंट, नो एडिटिव इज देयर. ठीक है, सो इट हैज नो क्लॉट एक्टिवेटर. अब क्या होता है, मतलब अब जैसे देखा जाए तो ये जो रेड टॉप ब्लड कलेक्शन ट्यूब होता है, इट कंटेन्स नो एंटीकोएगुलेंट और हैज अ सिंपल क्लॉट एक्टिवेटर. मतलब एंटीकोएगुलेंट नहीं होता है, क्लॉट एक्टिवेटर की तरह इसमें काम करता है. तो ये सीरम इसमें से निकलता है. ठीक है, और ये इसमें से क्या निकलता है? होल ब्लड फिल रेशियो मस्ट बी मेंटेन, जो मैंने बताया 9:1. ठीक है, तो मैंने सब में सब कुछ मेंशन किया हुआ है, राइट? सो सी, इस ये हम मेनली कहाँ यूज करते हैं? सेरोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में, हॉर्मोन्स में, और इसके अलावा थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग में. सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट दी हॉर्मोन्स like thyroid hormone, reproductive hormone levels, so you will be needing this particular vial. If you want to measure the medicine level in the blood, then also you want serum level में हम measure करते हैं. If you want to test some serological and immunological testing, then also antibody infections देखना है, तब भी आप serum use करोगे. और organ health देखना है, like liver, kidney function, then also you will use serum. ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल. जो इसमें काम कैसे होता है, आपका जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है, राइट? ब्लड विल क्लॉट एंड देन आप इसको क्या करोगे? आप सेंट्रीफ्यूज कर दोगे, जिसकी वजह से आपको सेल डेब्रिस जो है वो सब सेल सारे नीचे रह जाएंगे और आपको सीरम सेपरेट हो जाएगा एंड आप उस सीरम से बहुत सारे टेस्ट कर सकते हो. ठीक है, सो ये बहुत कॉमन ट्यूब है जो कि आपको देखने को मिलता है हर लेबोरेटरी में. अपार्ट फ्रॉम दैट, गोल्ड कैप्ड कलेक्शन ट्यूब भी आपने देखा होगा. ठीक है, जिसमें क्लॉट एक्टिवेटर प्लस जेल सेपरेटर होता है, विच यू कैन सी इन द फिगर इटसेल्फ. सो गोल्ड ब्लड कलेक्शन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज सीरम सेपरेटर ट्यूब. इसी को हम बोलते हैं सीरम सेपरेटर ट्यूब. ठीक है, बेसिकली क्यों ऐसा कहा जाता है? इट कंटेन्स अ क्लॉट एक्टिवेटर एंड अ बैरियर. जैसे मैंने यहाँ लिखा है क्लॉट एक्टिवेटर प्लस जेल सेपरेटर. तो इसमें क्या होगा? इट इज यूज टू कलेक्ट दी सीरम. सीरम कलेक्ट होगा एंड उसके बाद विच विल बी यूज फॉर द रूटीन क्लिनिकल केमिस्ट्री. जैसे कि आपको मेटाबॉलिक पैनल्स देखना है, लिपिड प्रोफाइल देखना है, हार्मोनल लेवल्स देखना है, ये सब. और जेल सेपरेटर आपका क्या करेगा? सो द जेल सेपरेटर विल डू व्हाट? एन इनर्ट पॉलीमर जेल होता है इसके नीचे में. ठीक है, बॉटम में एन इनर्ट पॉलीमर जेल एट द बॉटम, जो क्या करता है? इट मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसकी वजह से एक फिजिकल वॉल बन जाता है लिक्विड सीरम और ब्लड सेल्स की वजह से. इसीलिए इसको जेल सेपरेटर और क्लॉट एक्टिवेटर बोला जाता है. तो जैसे बायोकेमिस्ट्री का जो टेस्ट करना है, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, इलेक्ट्रोलाइट्स, आयरन स्टडीज, ट्यूमर मार्कर्स, तो हम इससे करते हैं. ठीक है, जो लिपिड प्रोफाइल हो गया, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, TSH हो गया, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल जो होते हैं, और अलग अलग और टेस्ट वो हम इससे करते हैं. ठीक है, कैसे काम करता है सीरम सेपरेटिंग ट्यूब? ये देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन आप करोगे. आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जेल फॉर्म्स अ बैरियर
between the clot and the serum, which will help in preventing reabsorption of cell, maintaining stability of analytes, easy separation of the serum. So this is how the gold tiger top or serum separating tube works. So I hope कि आप सब कुछ इससे समझ रहे हैं, एंड आप जो भी आप, मुझे लगता है कि नोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई विल प्रोवाइड दिस टू यू. सो द नेक्स्ट वन इज ग्रीन, जिसे हम कहते हैं हेपेरिन ट्यूब. ठीक है. सो द ग्रीन टॉप ब्लड कलेक्शन ट्यूब कंटेन्स हेपेरिन. हेपेरिन लाइक लिथियम, सोडियम और अमोनियम हेपेरिन का कंटेन करता है वो इसमें एज अ एंटीकोएगुलेंट, जो क्या करता है, विच एक्ट एज अ फास्ट एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट टू यील्ड प्लाज्मा. ठीक है. अब आपने ये वाला भी देखा होगा. इफ यू वांट टू डू, किस किस टेस्ट में काम आता है, रैपिड टेस्ट में और इलेक्ट्रोलाइट्स में. कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स? इफ यू वांट टू मेजर दी लाइक सोडियम लेवल, ठीक है, पोटेशियम लेवल या और कोई आयन मेजर करना है आपके ब्लड में, देन यू विल यूज दिस. इसके अलावा इसमें क्या एडिटिव होता है ये आपको पता चल गया. हिपेरिन होता है, लिथियम या फिर सोडियम, और इसमें सैंपल टाइप आपका कैसा आएगा, प्लाज्मा आएगा. ठीक है, प्लाज्मा आएगा. प्लाज्मा बायोकेमिस्ट्री कैन सी एबीजी, सम स्पेशल केमिस्ट्री टेस्ट भी इसमें किए जाते हैं. और इसमें भी हम क्या करते हैं, जेंटली इन्वर्ट करके 8 से 10 बार मिक्स करते हैं ब्लड को. ठीक है, जिसकी वजह से वो क्लॉट नहीं होता है, टू स्टॉप, क्योंकि इसमें एंटीकोएगुलेंट है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रे सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट ट्यूब. दैट इज अगेन दिस विल गिव यू प्लाज्मा. ठीक है, प्लाज्मा आपको मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जिससे आप ग्लूकोज लेवल मॉनिटर कर सकते हो, लैक्टेट, इथेनॉल लेवल, ग्लाइकेटेड एल्ब्यूमिन, ओजीडीटी. ठीक है. इसके अलावा आता है आपका ब्लैक वाइल वाला, जिसमें होता है सोडियम सिट्रेट बट एट द कंसेंट्रेशन ऑफ 3.8%. इट एक्ट एज अ एंटीकोएगुलेंट. सो इसमें भी आपको फिल इन लाइन तक फिल करना होगा, एंड इससे आप क्या करते हो, ईएसआर करते हो, और कुछ कुछ कोएगुलेशन टेस्ट जो स्पेशल रिक्वायरमेंट होते हैं फॉर सम पेशेंट्स, ये किया जाता है. इसके अलावा होता है पिंक ईडीटीए वाला. ठीक है. तो पिंक वाले में क्या होता है, पिंक वाले में भी होल ब्लड निकलता है. ये ब्लड बैंक में जैसे ग्रुपिंग के लिए या क्रॉस मैच के लिए कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स में, और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में वायरल लोड के लिए यूज होता है. ठीक है. सो आई थिंक कि आपको मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताई है कि क्या क्या चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में. ठीक है. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कंफ्यूज किस में होगे, पिंक वाले में. ठीक है. तो जो पिंक वाला है उसमें क्या होता है, उसमें इथाइलिन डायामीन टेट्राएसिटिक एसिड ईडीटीए होता है एज एन एंटीकोएगुलेंट. ठीक है. तो ये मेनली किस लिए यूज होता है, अगर क्वेश्चन आता है कि क्रॉस मैचिंग के लिए, ब्लड बैंक के लिए, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक के लिए, तो यू हैव टू चूज दिस पिंक ब्लड वाइल. ठीक है. जैसे एंटीग्लोबुलिन टेस्ट जो होता है वो भी इसी से किया जाता है. और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये मैचिंग के फॉर्म में आ सकता है, और एक कॉलम में आपको दे दे फंक्शन अलग अलग टेस्ट, और एक में वाइल ऐसा पूछ दे. सो अब जैसे देखो, अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये भी तो, लेवेंडर में भी तो एंटीकोएगुलेंट है, पिंक में भी एंटीकोएगुलेंट है, सो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन पिंक वर्सेस पर्पल और लेवेंडर tube? What is the main difference? So the main difference is that the similar thing is that they both contain the anticoagulant, that is EDTA, right? दोनों में ही EDTA होता है, but they serve different clinical destination. मतलब उनका जो फंक्शन है वो अलग है. पर्पल ट्यूब जो होते हैं वो रूटीन हिमेटोलॉजिकल टेस्ट के लिए होते हैं, जैसे कि आपको सीबीसी करना है. ठीक, सीबीसी, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ईएसआर, ये सब करना है तो आप चूज करोगे लेवेंडर वाला. बट इफ यू वांट टू डू सम स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड ब्लड बैंक या फिर क्रॉस मैचिंग आपको करना हो, तब आप पिंक वाला वायल यूज करोगे. सो राइट सैंपल इन द राइट ट्यूब इज इक्वल टू राइट डायग्नोसिस. इन सब एक एक लाइन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. इंपॉर्टेंट नोट्स पे कुछ ध्यान देते हैं हम. ऑलवेज फॉलो द ऑर्डर ऑफ ड्रॉ टू अवॉइड एडिटिव कंटामिनेशन. ठीक है. Mix gently by inverting the tube 8 to 10 times. Do not shake vigorously.
fill the tube to the marked volume, label the tube at the side, transport sample as per recommended. Yes, this is the most important thing for every laboratory. If you are unable to maintain the required temperature, then the sample will be spoiled and the analysis will be very much difficult, and it will not give you the exact outcome, right? So you should know your tube, because if you will know the tube, that why your blood is collected in lavender cap, why your blood is collected in like golden cap collection tube, so then only you will be able to have certain things. नाउ अब आप देखो, एक चीज आपको दिख रहा होगा जो कि आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि क्यों मैम ने ये ऑर्डर ऑफ ड्रॉ बनाया है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्यों बनाया है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों हम ऐसा करते हैं। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द ब्लड कलेक्शन ट्यूब कलर्स इन हेल्थ केयर। ठीक है, मतलब कि कब हमें कौन सा ब्लड निकालना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सो फ्लीबोटॉमी का ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कब किस सीक्वेंस में हमें ब्लड निकालना चाहिए। ठीक है, सो करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो CLSI कहता है कि हमें अगर ब्लड निकालना है, ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ब्लड कल्चर फर्स्ट करना चाहिए। जैसे कि जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, उसी चीज को आप फॉलो कर सकते हो। CLSI का जो गाइडलाइन है, CLSI का, वो आप एग्जैक्टली फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जैसे ब्लड कल्चर के लिए पहले निकाल दिया, फिर उसके बाद में आपने लाइट ब्लू सोडियम सिट्रेट वाले में निकाल दिया, फिर रेड वाले में निकाल दिया, उसके बाद गोल्डन वाले में, फिर ग्रीन वाले में। ठीक है, फिर उसके बाद लैवेंडर या पिंक, देखो लैवेंडर या पिंक लास्ट में भी आता है। एंड जैसे आप ब्लड कल्चर जैसे ब्लड कल्चर बॉटल होता है ना, उसमें आप पहले ब्लड निकालते हो, उसके बाद का सीरीज है। लेकिन अगर आपने वो नहीं किया है तो आप डायरेक्टली इसमें निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर वो किया है तो ये किसके बीच में आ जाता है, ये ग्रीन के बाद आ जाता है। ठीक है, ये पर्पल मतलब लैवेंडर या पिंक, वो हैश ही स्लैश रहता है, मतलब दोनों एक ही सीक्वेंस में आएंगे। उसके बाद ग्रे में, ठीक है, जिसमें सोडियम फ्लोराइड और ये सब है। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना चाहिए फॉर ड्रॉ ऑफ ब्लड। सो ये दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस स्टॉप ट्यूब एडिटिव फ्रॉम क्रॉस कंटामिनेटिंग सबसिक्वेंट सैंपल। क्यों, क्योंकि जैसे आप ब्लड निकाल रहे हो तो वैक्यूटेनर में, तो ये कंटामिनेशन का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपने ये अभी तक पढ़ा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, सो इस एक स्लाइड से सिर्फ 10 मिनट्स देखो। बहुत सारी चीजें तो आप ऑलरेडी जानते हो, लेवेंडर कैप आप जान रहे होंगे, ठीक है, ग्रे आप बहुत जानते हैं क्योंकि ग्लूकोज के लिए यूज होता है वो। इसके अलावा जो गोल्डन है वो आपने नहीं देखा होगा, मे बी पिंक वाला, ग्रीन वाला। तो इसको एक बार बस इससे पढ़ो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत ही क्यूट डायग्राम के साथ बनाया गया है। ठीक है, डू वॉच इट एंड देन यू विल बी गुड टू गो। सो यू विल बी हैविंग वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। नाउ आई एम मूविंग फर्दर, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई मैंने कर दिया है। लैवेंडर एंड पर्पल कंटेन्स व्हाट एडिटिव, EDTA. Major test I have mentioned that it is used for CBC, glycosylated hemoglobin, peripheral smear, many hematological test. Light blue contains sodium citrate, red contains no anticoagulant, serum based biochemistry and serological test के लिए होता है. Gold या yellow serum separating tube, it has clot activator plus gel, which is ideal for liver function test, kidney function test, lipid profile, hormones and different immunoassays. Green is for what? Green contains heparin. ठीक है, so it will not let your blood coagulate, so it acts as an anticoagulant and then you will get a plasma. Now gray is containing sodium fluoride plus oxalate, plus minus oxalate, which is for glucose related testing where glycolysis inhibition is required. Now black also contains sodium citrate but at different percentage, so ESR in dedicated system. Now pink also contain EDTA, so it is for like blood bank testing according to the institutional protocol, or let's say for cross matching we use. यहाँ पे you can see the laboratory कहाँ पे कौन सा ज्यादा जाता है। EDTA is for hematology, CBC के लिए, ठीक है, CBC एंड रिलेटेड टेस्ट के लिए, सिट्रेट कोएगुलेशन के लिए, सीरम बायोकेमिस्ट्री सेरोलॉजी के लिए, हेपारिन प्लाज्मा बायोकेमिस्ट्री के लिए, उसके बाद फ्लोराइड ग्लूकोज प्रिजर्वेशन के लिए, ब्लड कल्चर बॉटल फॉर ब्लड कल्चर इन माइक्रोबायोलॉजी लैब,
sputum for respiratory and TB testing, CSF for infection workup, tissue plus formalin histopathology, right? So you can see how important these are, and if you haven't studied yet, now this is the high time that you should cover it without any doubt, because in the part A you will be having these type of question. ठीक है? So uh, I just request you to do complete it, because ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मतलब आपको एक ना एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही. ठीक है? सो आई थिंक